Good morning, students. Today we are going to study social science of grade 8 and especially the history part. This is the requested video. One of you had requested to make a video on the permanent settlement and Malwari system and Rotwari system. So I am going to discuss those topics also in this video probably. So I'll start from the beginning and let's see. If the video is very long, I'll cover little part in this and little in the next part. Okay, so link I'm going to put in the description box so you can check the same. So let's start with the chapter life in the rural areas. This is chapter number 3 of your history book, and this is page number 22. Okay, so you can open the book meanwhile while I'm teaching this. Okay, so this chapter is going to talk about the life in rural areas, and I don't need to tell you what time they are talking about. They are talking about the time when the Britishers were ruling in India. Okay, so when the British came to India, villages were self-sufficient units. Most of the things which villager needed were produced in the village itself. Listen, before the villagers entered the India was self-sufficient. The villages were all self-sufficient, which means whatever they needed, they used to produce it themselves, and they never needed anybody's help. So they were like complete in themselves. The farmer owned the land he cultivated, and he could not be evicted, which means that the farmer was the owner of the land on which he was cultivating his crops, and he could not be evicted means that he could not be like thrown away from the land because he was the owner. So he felt very safe and secure. He paid a small amount of his produce to the king. Okay, so small part of his produce, so whatever crop cultivation he used to do, no, so the production, a little part of the production he used to give to the king of that area. Okay, but if at all the crops did not give too much of production because of some natural calamities such as floods or droughts, the kings reduced the land revenue or sometimes totally wrote it off. दिस मीन्स दैट कभी कभी ऐसे होता था कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो राजा लोग हमेशा बोलते थे कि लैंड रेवेन्यू हम चलो अब की बार आप कम दे दो या फिर आप दो ही मत, नो प्रॉब्लम. ठीक है. The coming of the British, however, changed the situation. Revenue began to be collected by the agents of the company. It was fixed and it had to be paid in cash. No concession was given even during the years when the crops failed. अब ब्रिटिश की एंट्री होती है इंडिया में, और अभी इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि पहले कैसा होता था. पहले सब कुछ ठीक था, कभी अगर क्रॉप्स ने ठीक प्रोड्यूस नहीं दिया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो राजा लोग बोलते थे चलो कोई बात नहीं, आप कम रेवेन्यू दे दो या फिर आप रेवेन्यू दो ही मत, नो प्रॉब्लम, चलो हम समझ रहे हैं इस बात को. बट जब ब्रिटिश आए तो जो सारी सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, अपसाइड डाउन हो गई. रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिशर्स के जो एजेंट्स थे, एजेंट्स यानी कि उनके बेसिकली आप कह सकते हो सर्वेंट्स या ऐसे कोई लोग जो उन्हें सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लोग ब्रिटिशर्स के जो एजेंट्स थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू. और रेवेन्यू बिल्कुल फिक्स था. फिक्स यानी कि फॉर एग्जांपल उन्हें मंथली देना है 200 रुपीज़, तो वो 200 रुपीज़ ही देना है और वो कैश में देना है उनको, और कोई कंसेशन नहीं होएगा. कैसे भी कोई कंसेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी भी क्रॉप फेल हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उस टाइम प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, बट नो कंसेशन वाज एवर गिवन. ठीक है, ये हुए हमारे फर्स्ट 2 स्टैंजाज. अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. ये रहा नेक्स्ट, ये जो ब्लू ब्लू लिखा हुआ है, कलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी. कलोनियल का मतलब ये कह रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनी के राज में जो चीज़ होती थी उसको कह रहे हैं कलोनियल. एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड. पॉलिसीज़ का मतलब जो रूल्स और लॉज इन्होंने फ्रेम किए रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए. अब इस पूरे टॉपिक में इन्होंने यही डिस्कस किया है कि इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के आखिर कौन कौन से तरीके निकाले, ठीक है, और कौन कौन से ऑफिसर्स को ड्यूटी पे लगाया और इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. इन्हें रेवेन्यू बेसिकली ब्रिटिश केम टू इंडिया टू जस्ट लूट द रिसोर्सेज ऑफ, दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडिया, एंड वो हमारे रिसोर्सेज लेना चाहते थे. उनका और कोई इंटरेस्ट नहीं था. उनको हमारी कंट्री को रिच नहीं, पुअर बनाने में इंटरेस्ट था और अपने आप को रिच बनाने में इंटरेस्ट था. तो वो हमारे गुड्स जाके एक्सपोर्ट करते थे, हमारी चीज़ें जाके एक्सपोर्ट करते थे और हर वक्त हम ही से पैसा मांगते थे. हमारी ही चीज़ों में से, हमारी ही प्रोड्यूस में से रेवेन्यू वो मांग रहे हैं, और हमारे ही लैंड पे, हमारे लैंड की प्रोड्यूस पे वो हमसे पैसा मांग रहे हैं जिसको हम ओन कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब ये रीड आउट करते हैं एंड समझते हैं. यू हैव रेड इन द प्रीवियस लेसन दैट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार,
and Orissa, now it is known as Odisha. The company needed money to purchase goods in India and export them, to run the administration, to maintain an army, and to fund the numerous wars that they fought both in India and abroad. इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे पिछले लेसन में आपने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक राइट मिला उन्हें बंगाल के रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, ना केवल बंगाल बल्कि बिहार और उड़ीसा अभी बोलते हैं इससे, लेकिन पहले से उड़ीसा बोलते थे, ठीक है। सो कंपनी को बेसिकली और पैसा चाहिए था। किस लिए पैसा चाहिए था उनको पैसा चाहिए था जिससे कि वो इंडिया के गुड्स खरीद सकें और उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें, राइट। सो उन्हें इसलिए पैसा चाहिए था ये गुड्स खरीदने के लिए। और किस चीज़ के लिए उन्हें पैसा चाहिए था? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, राजपाट वगैरह चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है। टू मेंटेन एन आर्मी भी बिना पैसे और बिना फंड्स के तो नहीं चलेगी, तो उसके लिए भी उन्हें पैसा और फंड्स चाहिए। एंड टू फंड द न्यूमरस वॉर्स दैट दे फॉट बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब लड़ाई वड़ाई भी हो रही है, उसके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। तो ये सारे पैसों के लिए उन्हें चाहिए था रेवेन्यू, और रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, ठीक है। ऑल अलोंग द ओनली एम ऑफ द कंपनी वॉज टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल। उनका कोई मकसद नहीं था, उनका था लूटो लूटो लूटो, जब तक उनके पास खूब सारे पैसे नहीं हो जाएं तब तक हम लूटते रहेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करते रहेंगे। एंड दे नेवर केयर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स बट देयर ओन पॉकेट्स हैड टू बी फिल्ड विद मनी, ओके। सिंस लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, अगले पेज पे अगले कॉलम पे चलते हैं। हाँ, सिंस लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इट्स टाइमली कलेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। अब इन लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? किसानों से ये लगान मांगते थे, रेवेन्यू मांगते थे, वहीं से इनका मोस्ट ऑफ द पैसा आता था। तो उनको ये लगता था कि इसका टाइमली कलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो बाकी सारी जगह ये पैसा कैसे लगाएंगे, राइट। तो फ्लरिश कैसे होंगे बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था मनी का, और इन्हें बहुत ज़रूरी था कि टाइम पे इन्हें मिलता रहे, ठीक है। टाइम पे नहीं मिलता था इनको, ठीक। When Warren Hastings was the Governor General, the company gave the right to collect revenue from an area to the highest bidder. But this system failed as bids were made for an amount much more than what the land could actually produce. ओके, जब वॉरेन हेस्टिंग आए गवर्नर बन के, गवर्नर जनरल बन के, तो कंपनी ने बेसिकली ये सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, रेवेन्यू हम उस एरिया से कलेक्ट करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाएगी रेवेन्यू की, ठीक है। लैंड के हिसाब से रेवेन्यू होएगा ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलोमीटर पूरा, फॉर एग्जांपल 1 बीघा ज़मीन और 2 बीघा ज़मीन, कुछ पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर्स आपके पास ज़मीन है, और आप उसमें से लगान देना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें जितनी भी प्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल वो 5,000 रुपये की प्रोड्यूस हो जाती है, 10,000 रुपये की प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप कितनी बिड लगाओगे? अगर 10,000 की प्रोड्यूस होगी तो आप 5,000 की बिड लगाओगे कि चलो 50% इन्हें रेवेन्यू दे देंगे। आप 12,000 और 15,000 की बिड तो नहीं लगाओगे, लेकिन लोगों ने यही किया, लोगों ने हाईएस्ट बिड लगाई, जो वो लैंड प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता उतनी बड़ी उन्होंने बिड लगाई। तो अब क्या होगा? अब उन कंपनी को रेवेन्यू कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो 15,000 तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता लैंड। तो जब वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता 15,000 लैंड, तो बिड पूरी कैसे करेगा? जिसने भी बिड लगाई, बोली लगाई, तो वो कैसे पूरी करेगा उस बोली को? वो पूरी नहीं हो पाएगी, और अल्टीमेटली ये सिस्टम जो था वो फेल हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, तो अभी जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आएगा। When Warren Hastings was the Governor General, the company gave the right to collect revenue from an area to the highest bidder. But this system failed as bids were made for an amount much more than what the land could actually produce. So the company never got the full amount. कंपनी को कभी भी पूरा पैसा मिला ही नहीं। उन्होंने बोल तो दिया 15,000, लेकिन वो कभी कंपनी को मिला ही नहीं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ओके, ये रियल नहीं है। द बिडिंग अमाउंट ऑल्सो वेरीड फ्रॉम 1 ईयर टू अनादर, रिजल्टिंग इन एन इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। अब हर साल बिडिंग अमाउंट भी बदलता रहता था। कभी कोई कहता था हम 5,000 का बिडिंग अमाउंट है हाईएस्ट, कभी कोई कहता था 10,000 है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, हमें नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ करता था। तो ये सिर्फ एक एजम्पशन है और एक आइडिया है, जिससे आपको एक वेरिएशन समझ में आए बस, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम देती थी। इंस्टेबिलिटी यानी कि कभी ज़्यादा हो रही है इनकम, कभी कम हो रही है, कभी और भी कम हो रही है, लेकिन एक फिक्स्ड इनकम नहीं हो रही है। और अभी हमने इस वाले ऊपर वाले स्टैंजा में पढ़ा था कि एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी था ब्रिटिशर्स के लिए, और टाइमली कलेक्शन बहुत ज़रूरी था, उसमें लेट नहीं चल रहा था उन लोगों को, ठीक है। सो टू स्मूदन, हमने अभी तक देखा इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका निकाला उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स निकली। तो इन्हें चाहिए था कि कुछ ऐसा स्मूथ सा कोई तरीका हो, जैसे फॉर एग्जांपल मकान मालिक किराया मांगता है और रेंटर जो होता है वो आराम से किराया देता है, तो मंथ का एक डेट डिसाइड करते हैं, इस डेट तक इतना किराया मिल जाएगा, तो स्मूथ रहता है सिस्टम। ऐसे नहीं होता कि इस महीने इतना किराया होगा, इस महीने हमारा ये नहीं हुआ तो चलो हम कम करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, एक सिंपल फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना था, एक स्मूथ सिस्टम चाहिए था जिसकी वजह से एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को मिलता रहे, ठीक है। सो टू स्मूदन द रेवेन्यू कलेक्शन mechanism, the company brought about some changes, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत स्मूथली हो, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड इज मालवारी सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज रियोतवारी सिस्टम। ओके, ये 3 सिस्टम इन्होंने निकाले रेवेन्यू कलेक्शन के। अब 3 क्यों निकाले वो भी हम देखते हैं, क्या पता कोई फेलियर हो गया पहले में तो दूसरा निकाला, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा, या different areas में। we'll just find out what exactly it was and let's study the main features of them। हम तीनों, इन तीनों systems का purpose, revenue collection mechanism यानी तरीका, अब चाहे पानी आरओ से आए या आपके टैप वाटर आपके टैप से आए या कहीं से भी आए, पानी आ रहा है ना आपके घर में, सोर्सेस चाहे जैसे भी डिफरेंट हो, तो सेम वे उनको पैसा चाहिए, चाहे वो किसी परमानेंट सेटल सिस्टम से आए, मालवारी सिस्टम से आए, रेवतवारी सिस्टम से आए, दे वांटेड रेवेन्यू एंड अ फिक्स्ड रेवेन्यू एंड अ टाइमली रेवेन्यू। ओके, सो इन सारे सिस्टम्स को हम अभी स्टडी करेंगे।